Hello students, welcome to the next lecture of solution and colligative properties. This lecture and lecture after this will be based on colligative properties. Okay, so we'll start with a new subtopic in solution colligative, that is colligative properties. Now this word colligative, it comes from a Latin word called as colliger. Colliger means bind together. So colligative means properties which depend upon particles bind together. Okay? So together means co and bind means liga. So it's derived from a Latin word colliger, and in English it is being translated as colligative. So colligative properties are those properties which depend upon particles binding together. They're coming together. Okay. So basically we can say that colligative properties are those properties which depend upon number of particles irrespective of their nature. मतलब colligative property does not depend upon nature of solute particles, but it depends only on number of solute particles. Nature of solute particles, whether it is an electrolyte, it is a non-electrolyte, it doesn't matter. Electrolyte, for example, you take NaCl, it will dissociate to give Na plus and Cl minus. So one NaCl is forming two particles over there, Na plus and Cl minus ions. If you talk about glucose, C6H12O6, it does not dissociate in water into ions, so it remains as one particle when you add glucose to water. So here NaCl is dissociating into ions as an electrolyte, and glucose is not dissociating into any ions, but the entire property of the solution will depend upon number of glucose particle and number of Na plus and Cl minus. It does not depend upon the nature, whether it's going to dissociate or not. उस पर depend नहीं करता, number पे depend करता है. मतलब dissociate होने के बाद कितना particle बना, associate होने के बाद how many particles are there. If it is not undergoing dissociation, then how many particles are there. So it totally depends upon the number of particles in a solution, and particles can be ions, can be molecules. You remember that. Okay, so colligative properties are those properties which depends upon number of particles, collections of particles together. Second point, it does not depend upon the nature of solute particles. अभी मैंने बताया आपको, वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, उस पर डिपेंड नहीं करता, नंबर पे डिपेंड करता है. थर्ड पॉइंट, colligative properties is applicable to ideal dilute solution. Okay, ideal which obeys Raoult's law, dilute solution which have very less concentration of solute. So dilute solution is less concentration of solute. Okay, so it depends upon ideal dilute solution. Now why do we study colligative properties? We study colligative properties to find molar mass of unknown solute. आपको कोई भी solute दे देंगे experiments में, अगर इसके experiments करना है तो, and from there you need to identify what is the molar mass of the solute and what can be the possible molecular formula of the solute. So molar mass of unknown solute निकालने के लिए, suppose in a water I give you a particular salt. आपको salt के बारे में नहीं पता है, but I give you an option कि there are 4 salt, NaCl, KCl, NaBr, KBr. There are 4 salts. I'm giving you options. You need to find out which is that salt. So that unknown salt, you will carry out the experiment. You, with the help of colligative experiments, you will find out the molar mass of the unknown solute, and then you can find out which salt is present in the solution. So colligative property का एक ही meaning है. You need to find out, मतलब एक ही application है, very important application is to find out the molar mass of unknown solute.
ओके. तो you have to keep things in mind कि colligative property, it means the collections of particles together, the particles are bind together. It depends upon the number of particles, do not depend upon the nature of solute. It is applicable to ideal dilute solutions where less concentration of solutes. And next is, it is help us to find out molar mass of unknown solute. तो you have to remember कि colligative property basically किस चीज़ के लिए यूज हो रही है. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, विच आर द टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो वो एक्सप्लेन करने से पहले नेचर ऑफ पार्टिकल, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आपको इफेक्ट दिखाता हूं. ओके, सो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर आई हैव गिवन यू एन आइडिया. अब राउल्ट्स लॉ का सेकेंड केस मैंने आपको पढ़ाया था. इन दैट आई हैव एक्सप्लेन कि वी कंसिडर a volatile liquid. In this, volatile liquid will have certain vapors over it, so it has a pressure that is called as P1 naught. This is a pure pressure of volatile liquid. In this liquid, I am adding a non-volatile solute. Non-volatile solute in a small amount. तो स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहा हूं, मतलब दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूट सोल्यूशन, ये डाइल्यूट बनने वाला है. सो व्हेन द सोल्यूशन इज फॉर्म, व्हेन अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज फॉर्म ऑन सरफेस, देयर विल बी अ मॉलिक्यूल्स ऑफ वोलेटाइल लिक्विड as well as molecules of non-volatile solutes. These non-volatile solutes won't make any vapor. वो vapor तो बनाएंगे नहीं because वो non-volatile है. So now here the vapor is formed only by the solvent, and we know that vapor formation is a surface phenomena. Evaporation is a surface phenomena. तो surface पे अभी volatile liquids के particle कम है as compared to the pure state, because in pure state you have only volatile liquid, nothing else. But when you add a non-volatile solute and you make a solution, then on the surface along with the non-volatile solutes, along with the volatile solutes, we have volatile solvents, we have non-volatile solutes which won't make any vapor, which won't form vapor. So अगर non-volatile solutes vapor नहीं बनाएंगे तो obviously here the number of vapors will be less. So here the vapor pressure of the solution is less than the vapor pressure of pure solvent. तो अगर suppose इसका प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर सपोज x atm आ रहा है, आपने कैलकुलेट किया. सो योर द वेपर प्रेशर विल बी लेस देन x atm, उससे कम होगा. ठीक है. सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि हाउ मच अमाउंट इज लोवर्ड, कितना कम हुआ है, अमाउंट कितना कम हुआ है. सो वी कैन फाइंड आउट कि x atm वॉज द इनिशियल अमाउंट. ओके, फाइनल अमाउंट वॉज लेस देन x atm. तो लेस देन x atm सपोज को हम लोग कंसिडर करते हैं y atm प्रेशर. सो नाउ कितना अमाउंट लोअर हुआ है, तो x विल बी ऑब्वियसली मोर, y विल बी लेस. तो x माइनस y करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना अमाउंट लोअर हुआ है. सो वी कैन राइट डाउन कि सपोज वी कंसिडर कि x एज 2 atm प्रेशर एंड y एज 0.5 atm प्रेशर. ओके, या 1.5 atm प्रेशर ले लेते हैं, 1.5 atm प्रेशर. तो उस नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालने के बाद उसका वेपर प्रेशर कम हुआ है. ठीक है. सो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि हाउ मच इट इज लोवर्ड, तो आप बोलोगे सर 2 माइनस 1.5 दैट इज 0.5, दिस अमाउंट इज लोवर्ड. सो दिस अमाउंट विल बी एज डेल्टा पी. 2 will be the P1 naught initial pressure, this is the vapor pressure of solution. So this become lowering of vapor pressure. So delta P is called as lowering of vapor pressure. ठीक है, lowering of vapor pressure. But if I divide this delta P by P1 naught, the initial amount, then it will be called as relative lowering of vapor pressure. ठीक है, ये आपने पढ़ा है कि when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure of the solution will decrease. उसका vapor pressure कम हो जाएगा. ठीक है, और आप ये कैलकुलेट कर सकते हो उसके कि how much amount is lowered and how much amount is respect to relative lowering of vapor pressure. You can calculate that कि कितना amount कम हुआ है and related to the pure pressure कितना amount कम हुआ है. That is called as relative lowering. ये आप कैलकुलेट कर सकते हो. Now
अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पर एक चेंजेस बताऊंगा. सपोज मैंने ये जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया है, सपोज वी कंसिडर दिस नॉन वोलेटाइल सल्यूट एज ग्लूकोज, ठीक है, एंड वी मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलार ऑफ ग्लूकोज. 1 molar of glucose. Glucose has a formula of C6H12O6 in water. It does not dissociate. आपने 1 molar लिया है, solution में 1 molar होगा. But suppose in this you add 1 molar NaCl, 1 molar NaCl to it. So now NaCl will go inside this pure water, will dissociate to form Na plus and Cl minus. So along with water molecule, along with liquid molecules, you have Na plus and Cl minus ions. अब Na plus and Cl minus ions does not form vapors. सिर्फ वाटर ही आके वेपर्स बनाएंगे, तो ऑब्वियसली ये जो सोल्यूशन बनेगा इसका वेपर प्रेशर भी लेस देन P1 नॉट होगा. ठीक है, सो दिस इज सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एंड दिस इज सोल्यूशन ऑफ NaCl. बट ये भी NaCl मैंने 1 मोलर बनाया, ये ग्लूकोज भी 1 मोलर बनाया. बट NaCl is a electrolyte. When it goes inside a water, it will dissociate. So when NaCl dissociate in water, it produce Na plus and Cl minus ions. मतलब अगर ये 1 मोलर लिया तो ये 1 मोलर हो जाएगा, ये 1 मोलर हो जाएगा. सो बेसिकली 1 पार्टिकल से कितना पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है? 2 पार्टिकल्स. ठीक है, और ग्लूकोज के अंदर इट वोंट डिसोसिएट, मतलब 1 पार्टिकल विल रिमेन एज 1 पार्टिकल. हियर 1 पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू 2 पार्टिकल, मतलब ये 1 मोलर है तो ये 2 मोलर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बोल सकते हैं. सो नाउ हियर इन दिस केस वी कैन से दैट कि इफ यू टेक 1 मोलर ऑफ ग्लूकोज यू हैव x पार्टिकल of glucose, but when you take 1 molar NaCl you will be having 2x particle of NaCl. Why? Because NaCl will dissociate. So number of particles in case of NaCl is more in spite of taking same concentration. Number of particle in case of NaCl will be more as compared to glucose. In spite of that you made both solution as 1 molar. दोनों आपने 1 molar बनाया, फिर भी NaCl के particles आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं. उसका रीजन क्या है? Because NaCl is undergoing dissociation. तो 1 particle से वो कितना कन्वर्ट हो गया? 2 particles में कन्वर्ट हो गया. So as number of particle increases on the surface, the number of vapor form will be less by the water. क्योंकि अब सरफेस पे ज्यादा नॉन वोलेटाइल सल्यूट्स आ गए हैं एज कंपेयर टू ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज के सरफेस पे 1 पार्टिकल होगा तो यहां पर x पार्टिकल्स हो गए, तो इसके सरफेस पे 2x पार्टिकल्स हो गए. जो पार्टिकल्स अगर बढ़ गए, कौन से पार्टिकल्स? वोलेटाइल के नहीं, नॉन वोलेटाइल के. तो एज पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ वेपर्स फॉर्म बाय वोलेटाइल लिक्विड्स विल बी लेस, वो कम हो जाएगा. तो मतलब यहां पर जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बना है वो 1.5 से जो ग्लूकोज का था उससे कम होगा. सपोज ये 1 ATM हो गया, तो अगर मुझे इसका लोअरिंग फाइंड करना है तो इसके लोअरिंग क्या हो जाएगा? 2 ATM वॉज इनिशियल माइनस 1 ATM जो फाइनल था, दैट इज इक्वल टू 1 ATM. तो यहां पर लोअरिंग कितना हो रहा है? 1 ATM का. यहां पर लोअरिंग कितना हो रहा है आप लोगों को? 1.5 ना. यहां पर लोअरिंग हो रहा है 0.5 ATM का, यहां पर लोअरिंग हो रहा है 1 ATM का. मतलब जितना ज्यादा सरफेस पे पार्टिकल बढ़ेंगे उतना ज्यादा कम होता जाएगा लोअर. ठीक है, सो 1 ATM द लोअरिंग विल बी मोर एज कंपेयर टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट नहीं हो रहा है. जो डिसोसिएट हो रहा है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे. नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस पे ज्यादा हो गए तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा. तो यहां का जो वेपर प्रेशर था वो 1 ATM का था, 1 ATM. यहां का जो वेपर प्रेशर है वो 1.5 ATM का है. तो यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा है थोड़ा, यहां पर वेपर प्रेशर थोड़ा कम है. दोनों ऑब्वियसली दिस 2 वेपर प्रेशर विल बी लेस देन दी ओरिजिनल, द इनिशियल वन, the pure one. Why? Because both of them are non-volatile solute. But what I want to say, what I want to convey with this 2 example is that कि colligative property depends upon number of particles. You made this solution 1 molar which has suppose x particle, so it will remain x particle only. But when you take 1 molar NaCl तो वहां पर पार्टिकल x नहीं होंगे, the particle will be 2x because NaCl will dissociate to form Na plus and Cl minus ions. अब suppose
इंस्टेड ऑफ NaCl अगर आपने ऐड किया होता कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड गिव Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, मतलब ये कितना पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है 3। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर इससे भी कम होगा, सपोज वो 0.6 atm हो गया, लेस देन दिस। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एज यू इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ वोलेटाइल सल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे आप वोलेटाइल सल्यूट में बढ़ाते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर और कम होता जाएगा। ठीक है, एंड व्हेन you calculate the difference, that will be called as lowering of vapor pressure, and when you divide lowering of vapor pressure with P1 naught, the initial pressure, the pure pressure, then it is called as relative lowering of vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure depends upon number of particles. जितना आप particles non volatile solute का बढ़ाओगे उतना ज़्यादा vapor pressure कम होता रहेगा। ठीक है, so relative lowering of vapor pressure is the first colligative property which depends upon the number of particles. अगर वो dissociate हो रहा है, वो associate हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा है, neither dissociation nor association, doesn't matter. It depends upon number of particle. How many particles are present in dilute solution? Whether it is undergoing dissociation or not, it doesn't matter. It does not depend upon the nature of solute. End में कितना particle है total, you need to calculate that. And if there is more of non-volatile solute, then there will be more lowering. Okay? So the first colligative property is relative lowering of vapor pressure. जितना ज़्यादा पार्टिकल्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा। कौन सा पार्टिकल? नॉन वोलेटाइल सल्यूट का। किस में? वोलेटाइल सॉल्वेंट में। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सो आई विल राइट डाउन हियर कि our first property is relative lowering of vapor pressure. So our first property, colligative property, is relative lowering of vapor pressure. Now what is the second property? There are total 4 colligative property. Second property बनाने से पहले, समझाने से पहले, let us try to understand what is the meaning of boiling point. Now मैं ask you the definition of boiling point. बहुत सारे students मुझे बताते हैं, it's a temperature where a liquid get converted into a gaseous phase, a vapor phase. That temperature is called as boiling point. मतलब okay, fine, but what is the actual definition? The actual definition of boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure. The vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. मतलब suppose मैंने water लिया है, pure water. Water is a volatile liquid. At a certain temperature, suppose 25 डिग्री सेल्सियस, ये लिड क्लोज है, यहाँ पर इसके वेपर्स बनेंगे, मैं प्रेशर चेक करूँगा. सपोज ये प्रेशर आ गया है 0.6 atm, ठीक है, और बाहर का जो प्रेशर है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm. सो when we heat, the vapor pressure increases because number of vapor increases. तो जब आप हीट करते जाओगे इस सोल्यूशन को, मतलब प्योर वाटर को, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा 0.6, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, ऐसा करते करते it will reach to 1 atm. When the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure, at that point the liquid will start boiling, and boiling is a process where the equilibrium will be set between the liquid and the gaseous state, and the temperature become constant. इसके लिए यहाँ पर जो टेम्परेचर आ जाएगा is 100 degree Celsius. So at 100 degree Celsius, when the temperature is raised to 100 degree Celsius, the vapor pressure of the pure water is from 0.6 atm to 1 atm, and it will start boiling. So now you will say that it's the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure, that is called as boiling point. ठीक है, ये प्योर वाटर था. सपोज मैंने एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर मैंने प्योर वाटर ही लिया है सेम अमाउंट का,
सेम टेम्परेचर पे इनिशियल जो था वही लिया. नाउ इन दिस सपोज इफ आई ऐड नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करने से प्रॉब्लम क्या होगा कि नॉन वोलेटाइल सल्यूट्स के पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे. ठीक है, तो ये वाटर के पार्टिकल हो गए ब्लैक में. दिस इज नॉन वोलेटाइल सल्यूट. इनिशियली इट वाज ओनली प्योर वाटर, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बन रहे थे. हियर इन दिस केस if you see properly only these water molecule will form vapors, बाकी ये non volatile red वाले जो surface पे है ये vapors नहीं बनाएंगे. तो obviously ये जो solution बना है इस solution का vapor pressure original से कम होगा. suppose ये हो गया 0.6 atm या 0.4 atm ले लेते, it is decrease. तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि whenever a non-volatile solute is added to a volatile solvent, its vapor pressure decreases. तो अब solution का vapor pressure कितना है 0.4, लेकिन बाहर का vapor pressure अभी भी कितना है 1 atm. ठीक है, now 0.6 से from 0.6 atm the vapor pressure from 0.6 to reach to 1 atm it requires 100 degrees Celsius the temperature. So from 0.4 to 1 atm obviously the temperature will be slightly greater than 100 degree. suppose वो आ गया 101 degree Celsius. suppose ये आपका solution का boiling point हो गया. this is boiling point of solution. now this is boiling point of pure solvent. this is boiling point of solution of non volatile. तो boiling point of solution हमको कितना मिल रहा है 101. प्योर वाटर कितना मिल रहा है 100. सो हाउ मच इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ मच इज द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ मच इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी, आप मुझे बताओगे, मैं आपको पूछूंगा कितना एलिवेट हुआ, तो आप मुझे बोलेंगे सर 101 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू दी 1 डिग्री सेल्सियस. इतना बॉइलिंग पॉइंट रेज हुआ है. सो दिस विल बी डेल्टा टी, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. 101 is boiling point of solution minus 100 is the boiling point of solvent. So can I say that this delta T is called as elevation in boiling point, and elevation is boiling point is the difference between the boiling point of solution of non-volatile solute and प्योर सॉल्वेंट. सो जब आप प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा ऑब्वियसली सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से बनाया है, तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज. अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीच करने के लिए उसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा एज कंपेयर टू दी प्योर स्टेट. सो ऑब्वियसली द बॉइलिंग पॉइंट विल बी रेज्ड, विल बी एलिवेटेड. अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया. अब जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सल्यूट आएगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा. जितना वेपर प्रेशर कम होगा मोर विल बी दी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो वी कैन से दैट elevation of boiling point depends on number of particle. If you increase number of particles, boiling point will be raised. अभी suppose हम लोगों ने यहाँ पर suppose यहाँ पर 0.5 ग्राम डाला, suppose 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाला, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना रेज हुआ 1 डिग्री. सपोज आपने 1 ग्राम डाला होता तो बॉइलिंग पॉइंट रेज हो रहा है 1.5 डिग्री. सपोज आपने 2 ग्राम डाल दिया, बढ़ा दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट रेज हो रहा है 2 डिग्री. सपोज आपने 3 ग्राम डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट रेज हो रहा है 2.5 डिग्री. तो जितना आप पार्टिकल्स डाल रहे हो नॉन वोलेटाइल सल्यूट्स का उतना बॉइलिंग पॉइंट रेज होता जा रहा है. सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल. तो वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया. So the second colligative property is elevation in boiling point. What about the third colligative property? Now freezing point of pure water. अब freezing point को हम लोग define करते हैं. freezing point क्या होता है? It's a temperature at which the vapor pressure of the liquid will be equal to the vapor pressure of solid solvent. मतलब यहां पर suppose मैंने water लिया है तो उसका वेपर प्रेशर 0.6 है. अब ये मैं जो पार्टिकल्स ले रहा हूं दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ आइस. दिस इज सॉलिड सॉल्वेंट. ऑब्वियसली ये है प्योर सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट है, ये सॉलिड सॉल्वेंट है. अब इसका भी एक वेपर प्रेशर होगा, देयर विल बी अ स्लाइट अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, तो जब ये लिक्विड का
दैट इज प्योर वाटर, इसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से मैच होगा। सपोज इसका वेपर प्रेशर P1 नॉट है एंड सॉलिड सॉल्वेंट का PS है, तो ऑब्वियसली जो सॉलिड सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर तो कम ही होगा। तो दिस इज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट। तो सपोज ये 0.6 ATM है एंड सपोज ये है 0.01 ATM, बहुत कम है। सो अब आपको वेपर प्रेशर कम करना है, तो वेपर प्रेशर कम करना है तो वेपर प्रेशर कम कैसा करेंगे, उसको कूल करेंगे। तो व्हेन यू स्टार्ट कूलिंग इट 0.6 ATM से नंबर ऑफ वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएंगे। अगर सरफेस पे वो कंडेंस हो रहे हैं मतलब नंबर ऑफ वेपर्स कम हो रहे हैं, मतलब वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। तो 0.6 ATM से कम होते 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 इट रीच टू 0.01 ATM। At this point the water will start freezing and converting itself into an ice. So that temperature, suppose वो temperature 0 degree Celsius आया, तो that temperature will be called as freezing point. So what is freezing point? The freezing point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the vapor pressure of solid solvent. तो प्योर वाटर के लिए वो फ्रीजिंग पॉइंट कितना निकला, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आप इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, ऑलरेडी इसका वेपर प्रेशर बहुत कम है, तो इसका जो सॉलिड सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा, उसको बहुत ज्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट निकलेगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट इट विल बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ऑलरेडी वेपर प्रेशर 0.4 पे है, बहुत कम है। तो इसको और ज्यादा आपको कूल करना पड़ेगा फ्रीज करने के लिए। तो यहां का जो फ्रीजिंग पॉइंट निकलेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब when you add a non-volatile solute to a volatile solvent, what happens to its freezing point of the solution? It will decrease. If you add more particle, it will decrease to more extent. Suppose इस pure water का freezing point 0 डिग्री सेल्सियस है, suppose इसका freezing point आया -0.5 डिग्री सेल्सियस, -0.5 डिग्री सेल्सियस। So 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है, बट जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो देन दैट सॉल्यूशन फ्रीजेस एट 0.5 डिग्री सेल्सियस, एट -0.5 डिग्री सेल्सियस। सो 1 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन आपका किस पे फ्रीज हो रहा है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन नॉन वोलेटाइल का सोल्यूशन कितने में फ्रीज हो रहा है, -0.5 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप और सोल्यूट ऐड करोगे तो वो और डिक्रीज होता जाएगा। सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, गिव यू द डिफरेंस। आप मुझे बोलेंगे सर प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, इट फ्रीजेस एज -0.5, तो मैं आपको पूछूंगा कितना डिक्रीज हुआ, तो आप बोलेंगे सर 0.5 का डिफरेंस है। सो दैट 0.5 डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेल्टा TF, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा। सपोज यू ऐड 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इट डिक्रीजेस टू -0.5। सपोज आपने 1 ग्राम डाल दिया, डिक्रीजेस टू -1 डिग्री, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम ही होता जाएगा जितना आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सिस्टम में ऐड करते रहोगे। सो वी कैन से दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट depends on number of particle. You put more particles, there will be more depression. Therefore depression in freezing point is called as which property? Colligative property. And fourth property is osmotic pressure, not osmosis, osmotic pressure. ये भी number of particles पे depend करता है, मैं आगे आपको explain करूंगा इसके बारे में डिटेल में। But as number of particle increases, osmotic pressure increases. So there are total 4 colligative properties. अब remember, very important point. Is vapor pressure a colligative property? Is vapor pressure a colligative property? No. नहीं. Colligative property को मैं CP से denote कर रहा हूँ, CP. Is vapor pressure colligative property? No, sir. Is lowering of vapor pressure colligative property? No. Is relative lowering of vapor pressure is a colligative property? Yes. तो you have to remember colligative properties क्या है?
relative lowering of vapor pressure. Vapor pressure नहीं है, lowering of vapor pressure नहीं है. If I ask you what is colligative property, so the first type of colligative property is relative lowering of vapor pressure. Second colligative property is not boiling point. It's elevation in boiling point. Boiling point elevate हो रहा है और जितना पार्टिकल डालोगे उतना elevate होगा. So boiling point is not a colligative property. Elevation in boiling point is a colligative property. Depression in the freezing point is a colligative property. Freezing point is not a colligative property. Osmosis is not a colligative property. Osmotic pressure is a colligative property. Okay? So you have to remember that these four are colligative property. Relative lowering of vapor pressure is denoted as delta P upon P1 naught. थोड़ा मैंने explain किया था अभी. Elevation is boiling point is delta TB. Depression in freezing point is delta TF. And osmotic pressure is denoted by pi. तो ये हम लोग अभी थोड़ा इसके बारे में स्टडी करेंगे more. Now before moving on to the detailed explanation of these colligative property, थोड़े important point हम लोग cover करते हैं. See, let us now try to compare colligative properties. Comparing colligative properties. सबसे पहला हम लोग कंपेयर करेंगे colligative property Cp of glucose and colligative property of NaCl. ठीक है, Cp of glucose and Cp of NaCl, ये दोनों की हम लोग बात करते हैं. ठीक है, सपोज मैंने ये 1 मोलार लिया है, ये 1 मोलार लिया है. अब ग्लूकोज को अगर आप एक्वस सोल्यूशन में 1 मोलार डालोगे, व्हेन द ग्लूकोज इज एडेड टू एक्वस सोल्यूशन वाटर टू मेक अ 1 मोलार, तो वो ग्लूकोज वाटर में जाने के बाद जितना आप अमाउंट डालोगे वो वाटर में जाने के बाद भी 1 मोलार रहेगा. मतलब if you take 1 particle, it will remain as 1 particle. But when you talk about NaCl, so NaCl when it is added to aqueous media, आपने 1 मोलार के अमाउंट डाला, इसमें ऐड किया 1 मोलार NaCl, सपोज 1 लीटर में आप बना रहे हो तो 58.5 ग्राम लगेगा, ग्लूकोज 180 ग्राम लगेगा. मतलब आपने कैलकुलेट 1 मोलार NaCl टू वाटर, आप अज्यूम कर रहे हो कि NaCl 1 पार्टिकल है, बट वाटर में जाने के बाद इट डिसोसिएट टू फॉर्म Na प्लस एंड Cl माइनस, मतलब इट विल फॉर्म 2 पार्टिकल्स. सो वी कैन से दैट कि अगर आप ग्लूकोज 1 मोलार ले रहे हो, NaCl 1 मोलार ले रहे हो, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल इज सेम. अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोर, और ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस केस में जो आपने ऐड किया है और जो सोल्यूशन में है दैट इज सेम. बट इस केस में जो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड कर रहे हो और जो सोल्यूशन में इज नॉट सेम, इट इज मोर. तो अब जो NaCl का सोल्यूशन होगा एज कंपेयर टू ग्लूकोज विल बिकम हाइपरटोनिक. ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ज्यादा पार्टिकल बन गए, और अब ग्लूकोज व्हेन कंपेयर टू NaCl बिकम्स हाइपोटोनिक, लेस पार्टिकल्स. ठीक है, तो दोनों आपने 1 मोलार लिया, लेकिन वाटर में जाने के बाद ग्लूकोज रिमेन एज 1 मोलार, बट NaCl जाने के बाद इट बिकम्स 2 पार्टिकल्स. सो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा. तो कैन आई से दैट विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स वी कैन से दैट के पार्टिकल्स की बात करें तो NaCl हैज मोर पार्टिकल देन ग्लूकोज सोल्यूशन. तो NaCl in aqueous media has more particle than the glucose in aqueous media. Therefore, can we write down that colligative properties of NaCl solution will be greater than glucose solution. क्यों? क्योंकि NaCl ज्यादा पार्टिकल, तो उसकी colligative property भी ज्यादा हो गया. colligative property कौन सी होती है? Relative lowering, elevation, depression, osmotic pressure. It means कि if NaCl has more particle, then it will experience more lowering of vapor pressure, more elevation in boiling point, more depression in freezing point,
and greater osmotic pressure. तो in case of NaCl the colligative property is more. तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा लोअर होगा. मतलब अगर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर सपोज 0.6 atm है, सपोज कर लेते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो ग्लूकोज जब आप वाटर में ऐड करोगे तो वो लोअर होगा. सपोज ये 0.5 atm हो गया ग्लूकोज ऐड करने के बाद. लेकिन NaCl जब ऐड करोगे वाटर के अंदर तो ये ज्यादा पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, तो वो ज्यादा इसको लोअर करेगा. सपोज ये 0.3 atm है. तो अब मुझे बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा हुआ? वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ ग्लूकोज का, और कम किसका हुआ? NaCl का, बिकॉज हियर द लोअरिंग इज मोर. सो वी कैन राइट डाउन कि इन केस ऑफ NaCl द वेपर प्रेशर ऑफ NaCl is less than vapor pressure of glucose. Why? Because NaCl में पार्टिकल ज्यादा है तो ज्यादा लोअरिंग, तो वेपर प्रेशर और कम होगा, ग्लूकोज से भी कम होगा. तो प्योर वाटर में ग्लूकोज डाल रहे हो तो 0.6 से 0.5 हो रहा है, बट वही प्योर वाटर में NaCl डाल रहे हो तो 0.6 से 0.3 हो रहा है. आप बोलेंगे सर इतना ज्यादा क्यों, जब आपने ये 1 मोलर लिया, ये 1 मोलर लिया तो भी मिला. इसके लिए बिकॉज इन स्पाइट ऑफ टेकिंग सेम कॉन्सेंट्रेशन व्हेन यू ऐड देम टू वाटर, ग्लूकोज डज नॉट show any dissociation. मतलब the initial number of particles and final particle is same, but in case of NaCl the initial and final particle is not same. Final particles are more than expected. Why? Because they undergo dissociation. तो यहां पर लोअरिंग ज्यादा होगा, ज्यादा पार्टिकल तो ज्यादा लोअरिंग, मतलब बहुत कम हो गया वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ऑफ NaCl विल बी लेस. अब बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो सोचो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, ग्लूकोज ऐड किया, सपोज बॉइलिंग पॉइंट आ गया 101 डिग्री. NaCl ऐड करोगे ये ज्यादा पार्टिकल देगा तो ज्यादा एलिवेशन होगा, तो 102 डिग्री पकड़ लो इसका. तो अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? जिसका एलिवेशन ज्यादा है. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl विल बी मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज. अब बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की. कम ऑन, थिंक अबाउट इट. तो 0 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर, सपोज ग्लूकोज 0.5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हुआ, कम हो जाएगा ऑब्वियसली. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. लेकिन NaCl ऐड करोगे तो इट विल गिव मोर पार्टिकल, तो वो और कम होगा. मतलब सपोज ये हुआ -1 डिग्री सेल्सियस, सो NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज से भी कम है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ NaCl विल बी लेसर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. देन नेक्स्ट इज osmotic pressure. So more particles, more osmotic pressure. So obviously NaCl has more particles, so pi of NaCl will be greater than pi of glucose. तो किसी का अगर याद रखने का, अगर किसी का भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है, मैं यहां लिख देता हूं, इफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस then vapor pressure decreases, boiling point increases, freezing point decreases, osmotic pressure increases. तो जिसका पार्टिकल ज़्यादा उसके वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा. कम ज़्यादा थोड़ा. ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस. मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, more lowering, so less vapor pressure. More elevation, तो more boiling point. More lowering of freezing point, so less freezing point. More osmotic pressure, तो greater value of osmotic pressure. Okay? Pause करके कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट पार्ट है. फिर मैं एक दूसरा पार्ट इसके अंदर डिस्कस करता हूं. Okay, I'll rub this out. ओके, सेकेंड हम लोग कंपेयर करेंगे. हम लोग कंपेयर करते ओके, एसिडिक एसिड CH3COOH इन बेंजीन. मतलब सॉल्वेंट मैंने क्या लिया है? बेंजीन लिया है. उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया है? एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड ऐड करके रख दिया मैंने इसके अंदर. ओके, नाउ दिस एसिडिक एसिड इन बेंजीन, बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट.
मतलब इसमें एसिडिक एसिड डिसोसिएट नहीं होगा बल्कि एसिडिक एसिड एसोसिएट हो जाएगा। एसोसिएट होगा मतलब सर मेरा इसका मतलब ये है कि यू टेक CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C double bond OH, you add acetic acid into what? Into benzene, the solvent. तो this acidic acid में oxygen is delta minus, hydrogen is delta plus, delta minus delta plus, polar है ये। बेंजीन में ऐड करोगे तो डिसोसिएट नहीं होगा बिकॉज बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर में ऐड करते तो डिसोसिएट हो जाता है, तो ये नहीं हो रहा है डिसोसिएट, बट ये होगा क्या? दे विल एसोसिएट। एसोसिएट मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, दे विल फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज यू टुक 2 पार्टिकल्स ऑफ बेंजीन, ऑफ एसिडिक एसिड इन बेंजीन, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक पार्टिकल में। क्यों? बिकॉज इट इज अंडरगोइंग एसोसिएशन। NaCl वाटर में डिसोसिएट हो रहा था, यहां पर एसिडिक एसिड आपने वाटर में नहीं लिया है, एसिडिक एसिड को आपने बेंजीन में लिया है, तो ये एसोसिएट हो जाएगा। एसोसिएट मतलब साथ में आ जाएगा। दिस विल फॉर्म अ डाइमर। डाइमर मींस 2 मॉलिक्यूल्स टुगेदर। तो यहां पर 2 पार्टिकल से एक पार्टिकल हो गया। अगर आप यहां पर एक पार्टिकल लेते तो हाफ हो जाता, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एसिडिक एसिड इन बेंजीन डिक्रीजेस ड्यू टू एसोसिएशन। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। लेकिन सपोज यू टुक अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन बेंजीन, अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन बेंजीन, जो डिसोसिएट नहीं हो रहा है, जो एसोसिएट, डिसोसिएट का चांस तो छोड़ ही दो, एसोसिएट भी नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक यूरिया इन बेंजीन। तो यूरिया मॉलिक्यूल इज NH2C डबल बॉन्ड NH2। ये मॉलिक्यूल आपने ऐड किया है बेंजीन में। अब सपोज आपने 2 पार्टिकल्स लिए हैं, यूरिया के पार्टिकल्स लिए हैं बेंजीन में डालने के बाद, ये यूरिया 2 पार्टिकल्स ही है। वाई? बिकॉज देयर इज नो एसोसिएशन इन यूरिया। मतलब यूरिया एसोसिएट नहीं हुआ, आपने 2 पार्टिकल लिया, वो 2 ही रह गया, इट इज नॉट गेटिंग एसोसिएटेड। तो अभी बेंजीन एसोसिएट हो गए, 2 से 1 पार्टिकल बन रहा है, यूरिया एसोसिएशन नहीं दिखा रहा है, so 2 particle is remaining as 2 particle. So tell me now the number of particle किस में ज्यादा है? तो if you talk about particles, then urea has greater particle as compared to acetic acid. तो एसिडिक एसिड से ज्यादा पार्टिकल यूरिया में है, क्योंकि एसिडिक एसिड इज अंडरगोइंग एसोसिएशन। डाइमर 2 कंबाइन होकर 1 में कन्वर्ट हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज लेस। अब जिसमें पार्टिकल ज्यादा होते हैं उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होती है, तो मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूरिया इज ग्रेटर देन एसिडिक एसिड। और आपको पता है अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का इंक्रीज होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा एलिवेट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज़्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मोर। सो वी कैन राइट डाउन कि इन दिस केस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूरिया इज ग्रेटर देन एसिडिक एसिड, देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ एसिडिक एसिड, क्योंकि ज़्यादा लोअरिंग हो गया, ज़्यादा पार्टिकल्स है। Boiling point of urea will be greater than boiling point of acetic acid. Freezing point of urea will be less than freezing point of acetic acid, and osmotic pressure of urea will be greater than osmotic pressure of acetic acid since it has more particles. So more osmotic pressure. ठीक है? So I've given you 2 cases, one for dissociation, one for association, and one is normal. अब इस केस में एसिडिक एसिड का जो सोल्यूशन होगा वो हाइपो हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपर। Why? Hypertonic, because it has more particle inside. Simple है, ठीक है? So this is the case where a molecule undergoing association. इससे जो पहले बताया था where the molecule undergoing dissociation. अब suppose आपने 2 solution लिया है, pause करके copy कर लेना जो भी करना है। I'll rub this out. अब third case क्या होगा? Third case is where you compare 2 liquids. Suppose urea in aqueous media and glucose in aqueous media, दोनों आपने 1 मोलार लिया है। यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा,
ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होगा, सो देयर विल बी नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ना डिसोसिएट हो रहे ना एसोसिएट हो रहे, मतलब दोनों केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी सेम, देन दिस टू सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो इनके कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो गए, मतलब तो आइसोटोनिक सोल्यूशन वेयर नंबर ऑफ पार्टिकल इज सेम बिकॉज देयर इज नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन। सो इन दिस केस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूरिया विल बी इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। देखो ये यूरिया, ये ग्लूकोज है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गए, बट उस केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग नेचर बोलते हैं। तो नेचर ऑफ सल्यूट पे ये डिपेंड नहीं करता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में सेम है बिकॉज यू टुक इट एज 1 मोलार, दिस इज ऑल्सो 1 मोलार, it has x particle, so it has x particle, it is not undergoing dissociation nor association, so these are isotonic solution, same concentration, same colligative property. Okay, so boiling point दोनों के सेम निकलेंगे, lowering दोनों का सेम होगा, depression और freezing point सेम होगा, osmotic pressure सेम निकलेगा. So you have to remember this. So guys, this was the introduction of colligative property with respect to number of particles. I hope you understood the lecture. The next lecture will be based on detailed explanation of all these 4 colligative properties. Okay, so write down, make a short note and write down things from the board, and I hope you understand this lecture. Thank you. Bye.